Hello friends, welcome once again to my channel Smita Classes. Today I will be dealing with the fourth chapter of the English literature book of Standard 6. The name of this English literature book is Insight, a multi-skill English course. And we will be dealing the fourth chapter. The name of the chapter is In the Bazaars of Hyderabad. This is a poem written by Sarojini Naidu, who was a leader during the freedom struggle in our country, and she has written this poem. And while she was writing this poem, at that time the Britishers were forcing to sell the goods produced by them in the European factories, and they were bringing those they were taking the raw materials from our country and producing goods in their factories, and then they were bringing those goods back to India and were forcing the people living here to buy those goods. In this way, what happened? The traditional weavers or the traditional traders, they lost their business because now they could not, people were not ready to buy their products because the Britishers were forcing the people to buy their own products. In this way, the traditional market of India hampered and was on a declining stage. That's why in that time Sarojini Naidu has written this poem. In this poem, she describes about the traditional bazaar of Hyderabad, how the traditional bazaar, what is the condition of traditional bazaar, what things they are selling in traditional bazaar. That's why she wrote this poem, so that the people could take interest in the traditional traders and goods. Okay, so we will start reading this poem. In the bazaars of Hyderabad. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. Turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. What do you weigh, O ye vendors? Saffron and lentil and rice. What do you grind, O ye maidens? Sandalwood, henna and spice. What do you call, O ye peddlers? Chessmen and ivory dice. ठीक है, तो वह कह रही है कि यू मर्चेंट्स, अरे व्यापारी सब, आप लोग जो हैं क्या बेच रहे हैं? आप जो भी अपना सामान बेच रहे हैं, अपनी वस्तुएं, उसको आपने कितने सुंदर से रिच वे में पूरा यहाँ पे डिस्प्ले करके रख दिया है, पूरा सजा के रख दिया है, सुंदर से उन्हें चमका के, ताकि लोग देख सके. ठीक है, आप लोग क्या बेच रहे हैं? आप लोग पगड़ियाँ बेच रहे हैं. सिर पे जो पगड़ी बांधते हैं ना, किस कलर की? क्रिम्सन और सिल्वर कलर की आपने पगड़ियाँ आप बेच रहे हैं. ठीक है, साथ ही साथ जो है आप ट्यूनिक्स बेच रहे हैं. ठीक है, ड्रेसेस बेच रहे हैं. जो है वो ट्यूनिक्स क्या था ना, कि पहले के समय में राजस्थानी लोग भी छोटा छोटा ट्यूनिक टाइप का पहनते थे, कुर्ते के ऊपर जेंट्स लोग भी पहनते थे, तो उसी को वो बोल रही हैं कि आप ट्यूनिक्स पहन रहे हैं जिसमें पर्पल कलर का ब्रोकेड लगा हुआ है. ब्रोकेड क्या है? उसके बॉर्डर में लगा रहता है, जो है कि सिल्क का कपड़े का है, और जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी की गई है. ठीक है, एम्ब्रॉयडरी की गई है किससे? सिल्वर और गोल्ड के धागों से एम्ब्रॉयडरी की जाती है. ठीक है, पहले के समय में हाथ से बैठ के एम्ब्रॉयडरी करते थे ना, सुंदर सुंदर फूल और अलग अलग चित्र सिलाई करके बनाते थे. तो सिल्क के कपड़ों में उस वक्त सोने और जो है चांदी के धागों से बनाया जाता था, पतले पतले धागों से. ठीक है, इस तरीके से वो लोग बनाते थे, उसमें एम्ब्रॉयडरी करते थे. पहले के लहंगा सब भी जो था उसमें भी करते थे. तो ये जो ट्यूनिक इन व्यापारियों ने बनाया है, ठीक है, कुर्ता जैसा बनाया है, उसमें उन्होंने एक बॉर्डर लगाया, ब्रोकेड लगाया है. किस चीज़ का? सिल्क के कपड़े का बना हुआ है, और उसमें एम्ब्रॉयडरी है, सोने और चांदी के तारों से एम्ब्रॉयडरी की गई है. ठीक है, उस साथ ही उसमें क्या लगा है? मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर. ठीक है, छोटे छोटे कांच लगाते हैं ना ड्रेसेस में, तो छोटे छोटे कांच लगाए हुए हैं, और जो है उन कांच के बीच में क्या है कि एक ना येलोइश कलर का एक हार्ड, एक ब्राउन सब्सटेंस मिलता है. येलोइश कलर का हार्ड ब्राउन एक चीज़ मिलता है, जिससे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, येलोइश ब्राउनिश सब्सटेंस होता है कि आर्टिफिशियल गहने बनाने में उससे हम लोग यूज़ करते हैं. एक हार्ड कुछ रहता है जिसे एम्बर बोलते हैं. तो ये जो ड्रेस में क्या है? कांच लगे हुए हैं, और कांच के नीचे नीचे लंबे लंबे लेस जैसे क्या लगे हुए, यही एम्बर लगा हुआ है, जो कि सुंदर दिख रहा है. ठीक है, डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ
जेड, ठीक है। वो जो छोटे छोटे चाकू होते हैं ना, कटारी जिसे हम बोलते हैं, जो पहले के समय में राजा लोग रखते थे, अपने वेस्ट में घुसा के रखते थे ना, तो वैसे छोटे छोटे कटार बिक रहे हैं, जिनके की हैंडल किसके बने हुए हैं, जेड के बने हुए हैं। जेड क्या होता है, एक तरह का बहुमूल्य पत्थर होता है, ठीक है, एक बहुमूल्य पत्थर होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो चूंकि ये राजा लोग ये कटार अपने पास रखते हैं, इसलिए इन कटारों के हैंडल को सुंदर जेड स्टोन से बनाया गया है, ठीक है। उनके हैंडल्स में जेड लगे हुए हैं और ये छोटे छोटे कटार हैं जो राजा लोग पर्सनल सुरक्षा के लिए अपने पास रखते हैं। अब वो बोल रही है व्हाट डू वे ओ ये वेंडर्स, हाँ, वो जो इधर उधर घूम घूम के अपने छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, बेचते हैं ना, हाँ, वो वेंडर को वो बोल रही है, वो बेचने वाले को वो बोल रही है कि तुम किस चीज़ को तौल रहे हो, हाँ, किसका मेजरमेंट कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो, वो लोग सैफरन बेच रहे, केसर बेच रहे होते हैं, ठीक है। वो लोग केसर बेच रहे होते हैं। केसर हम लोग जानते हैं कि वो फूड में कलर देता है और स्मेल देता है, अच्छा है ना, पतले पतले धागों जैसा होता है केसर। तो वह केसर बेच रहे हैं और दालें बेच रहे हैं, तरह तरह के दाल बेच रहे हैं और चावल बेच रहे हैं, उन्हीं को वह तौल रहे हैं, उन्हीं को वह मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तराजू में लेके वह तौल रहे हैं। और ये जो मेडन्स है ना, ये जो औरतें हैं, ये छोटी लड़कियां हैं, ये लोग क्या बेच रही हैं, ये लोग सैंडलवुड, ये चंदन की लकड़ी बेच रही हैं, हीना बेच रही, हीना मतलब मेहंदी बेच रही हैं और मसाले बेच रही हैं, ठीक है। पहले के समय में मेहंदी यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, चंदन की लकड़ी को घिस के चेहरे पे लगाते थे या पूजा के समय जगह यूज़ करते थे, मसालों को खाने में यूज़ करते थे। तो ये जो यंग लड़कियां हैं वो लोग ये सब बेच रही हैं। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, हाँ, ये जो पेडलर है, पेडलर कौन होते हैं, जो लोग एक छोटे छोटे अपने सूटकेस या टोकरियाँ पकड़ के ना एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और सामान बेचते। ज़्यादातर सूटकेस छोटे छोटे पकड़े रहते हैं, कांच लगा हुआ सूटकेस, और एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के छोटे मोटे सामान बेचते हैं। तो ठीक है, तो ये पेडलर लोग जो हैं वो लोग क्या बेच रहे हैं, तो उन्हें वह पोएटस क्या कह रही है, कवित्री उन्हें क्या कह रही है, चेसमैन एंड आइवरी डॉयस, हाँ, उन्हें वो चेसमैन कह रही है। क्यों, क्योंकि वो लोग चेस का बोर्ड बेच रहे हैं, जो गेम्स होता है, चेस खेलने वाला गेम होता है, उसका बोर्ड बेच रहे हैं, और साथ ही वो डायस भी बेच रहे हैं, जो लूडो में हम लोग डायस यूज़ करते हैं। वो डायस किसका बना हुआ है, चूँकि ये राजा के लोगों के लिए खासकर वो बेच रहे हैं, तो वो डायस आइवरी का बना हुआ है। आइवरी क्या होता है, हाथी के दांत होते हैं, तो हाथी के दांत को घिस घिस के उससे वो डायस बनाया गया। डायस आप समझते हैं ना, जब आप लूडो खेलते हैं तो वो डायस फेंकते हैं ना, इसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, तो वही वो डायस है जो कि हाथी के दांत का बना हुआ है। What do you make, O ye goldsmith, wristlet and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for the dancers, scabbards of gold for the king। ठीक है, वो बोल रही हैं सोनार लोग को, गोल्डस्मिथ लोग को, ठीक है, जो सोने के सामान बनाते हैं, कि तुम लोग क्या बेच रहे हो। रिस्लेट एंड एंकलेट एंड रिंग, ठीक है, वो लोग जो है कलाई में पहनने के लिए जो ब्रेसलेट टाइप का होता है, जिसे रिस्लेट कह रहे हैं, वह बेच रहे हैं। एंकलेट कह रहे हैं, मतलब कि जो पायल होते हैं, पायल जैसे सामान, वह बेच रहे हैं। पायल बेच रहे हैं जो पैरों में पहना जाता है, एंकल्स में। रिंग बेच रहे हैं जो कि हाथ में, फिंगर्स में हम लोग जो अंगूठियाँ पहनते हैं, ये सब वो सुनार लोग बेच रहे हैं। साथ ही वो क्या बेच रहे हैं, पहले के समय में क्या होता था ना, कि कबूतरों को एक जगह से दूसरी जगह लोग मैसेज देने के लिए उड़ाया करते थे, उन्हें ट्रेनिंग देते थे, उनके पैरों में बांध देते थे कोई कागज़ में लिखा हुआ मैसेज, और कबूतर उड़ के दूसरी जगह जाते थे, और वह जो दूसरा व्यक्ति होता था वो मैसेज को खोलकर वह पढ़ लेता था। हाँ, तो कबूतरों को उड़ाने के लिए वो लोग मैसेज के भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो गोल्डस्मिथ है, ये जो सुनार है, वह क्या बना रहा है, ये जो नीले रंग के कबूतर हैं, हाँ, हल्के नीले रंग के होते हैं, नीले और ग्रे कलर के मिक्स होते हैं, तो वो नीले रंग के कबूतरों के पैरों में लगाने के लिए छोटे छोटे बेल्स बना रहा है, घंटियाँ भी बना रहा है ना। राजा लोग कई बार घंटियाँ लगाते थे, ताकि वो मैसेज जब दूसरे के पास जाए, तो जब पिजन वहाँ पहुँचे तो घंटियों की आवाज़ हो, तो दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ, मैसेज आ गया है, और सुंदर भी दिखता है। तो वह छोटे छोटे घंटियाँ भी बना रहा है। फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, है ना, एक ड्रैगन फ्लाई होती है, मोटी वाली, जो बड़ी वाली तितली यहाँ उड़ती नहीं रहती है, कई बार दिखाई देती है, मोटी मोटी सी होती है बहुत,
और काफ़ी थोड़े बड़े साइज़ की होती हैं। तो उनके जो पंख होते हैं ना वो बहुत ही नाजुक होते हैं, इतने नाजुक कि लगता है छू देंगे हम उन पंखों को तो वह टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सुनार है वह ये जो गहने बना रहा है और ये जो घंटियाँ बना रहा है कबूतरों को पैरों में लगाने के लिए, वो इतने नाजुक घंटियाँ बना रहा है, इतने हल्के बना रहा है जो कि बिल्कुल लगता है कि ड्रैगन फ्लाई के विंग के जैसा है, उस तितली के पंखों के जैसा है। क्यों बना रहा है वह इतने हल्के? क्योंकि पिजन के पैर में नहीं तो पिजन को भारी लगेगा और वह उड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसके पैरों में हल्की हल्की घंटियाँ लगाई जा रही हैं। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। ठीक है, क्या होता है जो डांसर लोग होते हैं ना, उन लोग अपने वेस्ट में, अपने कमर में जो है ना एक तरह का जो कमर धन्नी जो हम बोलते हैं, एक तरह का बेल्ट जैसा पहनते हैं, जो कि जिसमें सोने के अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने रहते हैं, लटके हुए रहते हैं, कुछ कुछ है ना, सोने के पार्ट्स लटके लटके रहते हैं, उन्हें गर्डल्स कहता है। ये कौन लोग पहनते थे उस समय? जो राजा के दरबार में जो डांस करते थे वो डांसर लोग पहनते थे, गर्डल्स ऑफ गोल्ड, है ना। तो ये कमर धनी जो होती हैं, कमर में लगाने वाले बेल्ट्स जो होते हैं, वो सोने के बने हुए बेल्ट वो डांसर लोग के लिए, नृत्यक लोग के लिए वह बेच रहे हैं। स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। ठीक है, जो राजा लोग तलवार रखते हैं अपने पास या छोटे छोटे कटार रखते थे, छोटे छोटे ऐसे घूमे हुए कटार रखते थे या सीधे सीधे चाकू भी रखते थे, तो उसको वो लोग ऐसे नहीं रखते थे, उसे एक कवर के भीतर घुसा के रखते थे, है ना, ऐसे तो चोट लग जाएगी ना। तो वो जो कवर है, वह कवर जो है वो सोने का बना रहता था। ठीक है, सोने का बना हुआ कवर थोड़ा हार्ड वाला रहता था, उसी के भीतर वो लोग उसे, उन तलवारों को या कटारों को, डैगर्स को वह घुसा कर रखते थे। तो वो भी ये सुनार लोग बना रहे हैं। What do you cry, O ye fruit men? Citron, pomegranate and plum. What do you play, O musicians, sitar, sarangi and drum? What do you chant, O magicians, spells for the eons to come? ठीक है, वो उस बाजार में, और वह क्या देख रहे हैं कि फल बेचने वाला भी घूम रहा है और वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अपने फलों के नाम कह रहा है उनको बेचने के लिए। उन फल में क्या है? सिट्रन है ना, एक ना बड़ा सा नींबू जैसा होता है, येलो कलर का होता है, और जैसे हम लोग क्या डाब या क्या बोलते हैं, कुछ अलग ही कुछ हिंदी में बोलते हैं, तो उसे वह सिट्रन इंग्लिश नाम है। तो वह फल बेचने वाला उस सिट्रन को बेच रहा है, पोमेग्रेनेट बेच रहा है, अनार बेच रहा है और प्लम बेच रहा है, छोटे छोटे जो फल होते हैं प्लम, उन्हें वह बेच रहा है। आई थिंक प्लम हम लोग शायद ये जो चेरी टाइप का कुछ फल होता है उसे वह बेच रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे म्यूजिशियंस भी एक स्टेज पे बैठे हुए हैं जो अलग अलग तरह की म्यूज़िक बजा रहे हैं। लोग जो बाज़ार में घूम रहे हैं वो उस म्यूज़िक का आनंद उठा रहे हैं, है ना। बहुत सारे संगीतकार लोग वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो क्या बजा रहे हैं? सितार, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है। सितार बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं और ड्रम बजा रहे हैं। ठीक है, ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं, उन्हें वह बजा रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे जादूगर भी अपने खेल दिखा रहे हैं और कुछ कुछ मंत्रों का जाप कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं। वो क्या मंत्र है? वो स्पेल्स जो वो बोल रहे हैं, वो जो मंत्र है वो किसके लिए बोल रहे हैं? आने वाले समय के लिए वो मंत्र बोल रहे हैं कि आने वाला समय अच्छा हो या कैसा होगा आने वाला समय, वह बताने के लिए वह मंत्रों का जाप करके बता रहे हैं। तो जादूगर भी वहाँ पे खेल दिखा रहे हैं अपना। ठीक है, मान लीजिए कुछ समय बाद वह दिखाएंगे कि टोपी के नीचे से खरगोश निकला, तो उसके लिए वो एक मंत्र बोल रहे हैं, आब्राकाडाब्रा, अब आएगा खरगोश। ठीक है, इस तरह आने वाले समय के लिए वो मंत्र बोल रहे हैं। साथ ही साथ वो बहुत आगे आने वाले समय के लिए भी मंत्र बोल रहे हैं कि जैसे पहले राजा के समय में होता था, ऐसा काल आएगा, ऐसा होगा, ऐसे करके लोग गाना गा गा के बोलते थे ना, इस तरह की भी बातें वो बोल रहे हैं। What do you weave, O ye flower girls, with tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blossoms new gathered to perfume the sleep of the dead। ठीक है, तो ये जो फूल बेचने वाली लड़कियां हैं वो लोग क्या बुन रही हैं? ठीक है, वो लोग बुन रही हैं, मतलब कि माले बना रही हैं, माला बना रही है, हार बना रही है। किससे? हम लोग तो सिंपल धागों में हार बना देते हैं ना भगवान को चढ़ाने के लिए, तो वो लोग जिन धागों में हार बना रही हैं वो रेशम के धागे हैं, सिल्क के धागे हैं। कैसे रंग के हैं? पूरे ब्राइट ब्लू कलर के हैं, जिन्हें टैसल्स ऑफ एज्योर कह रहा है।
कह रही हैं, जो पोएटेस है वो कह रही है टैसल्स ऑफ एज्योर, मतलब ब्राइट नीले रंग के रेशम के धागे हैं जिनमें वह फूल डाल रही है और बना रही हैं कुछ, क्या बना रही हैं, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, ठीक है, जो दूल्हा है उसके लिए एक मुकुट जैसा वह बना रही है, दूल्हा और दुल्हन के लिए वो मुकुट बना रही है ताकि वह अपने सर पर पहन सके उस मुकुट को, ठीक है। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, साथ ही फूल के वो हार भी बना रही हैं, माला बना रही हैं ताकि जो नए दूल्हा दुल्हन होंगे उनके बेड को सजाया जा सके, इसलिए फूल के हार भी वो बना रही हैं। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गैदर्ड है, सफ़ेद रंग के फूलों को उन्होंने जमा कर रखा है, इतना जमा कर रखा है वहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है वो बहुत सारे फूलों को उन्होंने जमा कर रखा है और उन सबको बुन कर एक धागे में पिरो कर वो एक बड़ा सा चादर बना रही हैं, एक शीट बना रही हैं। क्यों? ताकि जो व्यक्ति मर चुका है, जिसकी कब्र बनी है, मकबरा बना हुआ है, उसके जो है वो कब्र के भीतर तो शांति से सो रहा है, डेड व्यक्ति सो रहा है, तो उसके कब्र के ऊपर सीमेंट कर दिया गया है, तो वो मकबरे के ऊपर वो फूलों की चादर, सफ़ेद फूलों की चादर को बिछाई जाएगी। ऐसा बिछाते हैं ना, लोगों को ऑनर देते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। पर इस पोएम में पोएटेस क्या बोल रही है कि वो सफ़ेद फूलों की चादर वो बना रही है ताकि जो व्यक्ति सो रहा है, मरा हुआ व्यक्ति वहाँ सोया पड़ा है, मरा पड़ा है, उसके मकबरे को जो है सुगंधित करने के लिए, अच्छे खुशबू के लिए वहाँ पे वो फूलों की चादर डाली जा रही है। तो ये है खासकर सरोजिनी नायडू ने इन्हें इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद नाम क्यों दिया है? उन्होंने हैदराबाद के बाजार को देख के सोच के ऐसा पोएम बनाया होगा। पर आप जब जाएंगे, चार मीनार जाएंगे, हैदराबाद में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, चार मीनार है, उसके सामने आप देखेंगे बहुत बड़ा सा मार्केट लगा रहता है। वो राजा के समय से, राजा ने ही वह मार्केट शुरू किया था। तो आप उसमें वहाँ पे आप देखेंगे तरह तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं, चूड़ियाँ से लेके सब कुछ मिलती रहती है, बहुत ही वैरायटी सामान वहाँ मिलता है। तो इसीलिए भी शायद सरोजिनी नायडू ने इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद मेंशन करके यह पोएम बनाया है, ठीक है। तो ये पोएम है कि एक ट्रेडिशनल इंडियन बाज़ार है, पारंपरिक भारतीय बाज़ार जो है उसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए यह पोएम बनाया गया है कि कितना खूबसूरत है वह बाज़ार। आप क्यों ब्रिटिशर्स के बनाए हुए गुड्स खरीद रहे हैं? आप अपने पारंपरिक बाज़ार के बनाए हुए सामान ही खरीदिए, ठीक है। तो देखिए पोएम कितना अच्छा था, कितने अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं पोएटेस ने। इसके साथ ही ये जो 4th चैप्टर हमारा था इंग्लिश बुक का, क्लास 6 के इंग्लिश बुक का, ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। और आप लोग को पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को इतना पसंद आ रहा है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब भी करते जाएं मेरे चैनल को, ताकि मैं और एक्साइटेड होकर नए नए और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।